So in previous class, PPT is not visible, sir. now, hello, Now it is visible, sir. is it PPT visible? My audio is clear. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Satish sir, hello. Yes, sir, visible, sir. Okay. In previous class, I have stopped here only the Bronfenner's ecological system of theory. Just I will brief what is this theory. In previous class, we studied the psychology in education, that is educational psychology. In that, we studied different cognitive development like Paget's cognitive development and others, Vygotski's social context theories. Then now we will learn about this Bronfenberg's ecological system theory. So the main important point regarding this theory is the development. This theory speaks about overall growth and development of human. So this theory believes that the development and growth depends on the ecology. Ecology means the system surrounding us or whatever system we are there in the, that is we call it as a ecological system. The ecological study, this world we will hold in the preventive medicine and in research also. Ecology means it consider whole things. So what the environment we living, that is called the ecology. So ecological system theory, this scientist Bronfenner proposed this theory. The growth and development will be based on our ecological system. So Bronfenner's ecological system theory provides a comprehensive framework for understanding the complex interconnected social context that shape the individual development, in particularly especially in the child development. Because why child development? Child is a part of this every human is a part of this ecology, but from beginning of human, the beginning of human is the child. The child development, it focuses on child development and influences the theory and highlights the crucial role of that various environmental system that plays the shaping of person's growth, behavior and well-being throughout the life. How our environment or this ecological system will affect our growth, our behavior, overall well-being throughout our life is explained in this ecological system theory. So in this, ecology means it is a broader one. The whatever things surrounding us is called ecology. In that, he divided small system, that is different of environmental system. In first one is microsystem. So what is microsystem? So immediate environment. In immediate environment means the microsystem represents the immediate environment in which the individual, such as child, lives and interacts on the daily basis. This includes the family, school, daycare, or any other setting where the child has direct face-to-face interaction with people, objects, and activities. व्हाट इज द एनवायरनमेंट? इमीडिएट एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम कहते हैं. सो चाइल्ड का घर हो जाओ, स्कूल हो जाओ और डे केयर हो जाओ, वेयर चाइल्ड इज डायरेक्टली involving that environment, the immediate environment we call as a microsystem. So this microsystems contains the immediate environment. So the immediate environment में क्या होते हैं? बच्चे और डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं. इधर इन होम the child will interact with parents, relatives,
whatever things. In schools, the child is directly interacting with other children and teachers, and in daycare. So any setting where child directly face-to-face interaction हो रहे तो that system we call as micro system. It has direct connection with the child or any person. That is the immediate environment or micro system. So here microsystem is characterized by the interactions where the child both influences and influenced by the people and elements within this immediate environment. These interactions shapes child's development of profound ways such as thought of nurturing they receive, social skill they learn, and values they internalize. इसका meaning क्या है? Immediate environment. This microsystem is very powerful. It influences the child because child major time most of the time resides in the home. So then the behavior of parents, behavior of relatives, behavior of closed ones, and the immediate environment, social people, elements, whatever things are there, they are directly influencing the child growth. So development, the social skills, values, the child will internalize by this immediate environment. If the immediate house environment, school environment is good, then that skills, morals, values, the child will internalize, because this is immediate one, immediate environment. This impacts majorly on the child development. That's why the first division is microsystem. Microsystem is nothing but immediate contact में रहते ज्यादातर child कौन सा environment रहते, that system or environment we call as a immediate environment, or that system we call as a microsystem. This is directly impact on the learning, values, and other things, because the child will receive everything directly from this environment. So what is the importance of this microsystem? Is considered as the most influential system in the Bronfen's theory, as this directly shapes the immediate experiences, has the greatest impact on the developmental trajectory. उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट में घर में कैसे वातावरण है, घर में बच्चे कैसे पेरेंट्स बिहेव करते, घर का पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल क्या है, वो कैसे व्यवहार करते, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइल्ड के ऊपर हो जाते, कल्चर क्या है घर का. सो एवरीथिंग विल बी डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस माइक्रो सिस्टम. समझ में आ गया? दिस इज वेरी सिंपल. जस्ट आई एम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट. समझ में आ गया? आप सब लोग देखते हैं ना, घर में बच्चे, हमारा घर का एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दैट इज द child is most time resides in that particular place, and it is very internal or immediate environment to the child. समझ में आ गया सबको what is microsystem? Yeah. देखो ecology contains broader things, but ecology में भी divide कर रहे हैं microsystem, exosystem, macrosystem. Microsystem means इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होते हैं चाइल्ड को, उनका फैमिली, उनका घर, स्कूल, कंटिन्यूअसली ज्यादा कांटेक्ट कौन सा एनवायरनमेंट रहते, दैट वन वी कॉल्ड एज इमीडिएट एनवायरनमेंट. दिस हैज मोस्ट influence, this will influence the most in the behavior development of the child. That is the microsystem. Microsystem में क्या क्या आता है? स्कूल आता है, फैमिली आता है, घर आता है, डे केयर और एनी अदर peers आता है, बच्चे का एज का चाइल्ड्स, they will play. So like that environment comes under the immediate environment. These are the example for the immediate environment. Then mesosystem क्या होता है? The mesosystem is a connections, interconnections and interactions between the different microsystem in a child's life, such as relationship between the family and school. This system focuses on how various settings, relationship a child experiences influence each other and impact on the child's development. Mesosystem में क्या होता है? बच्चे का घर है, ये स्कूल है. The connection between these two microsystem, interconnection between these two is called as mesosystem. For example, अगर घर होम का एनवायरनमेंट अच्छा है. हेलो, slide not visible, all of you. Hello.
Visible, sir. सतीश सर, एक बार चेक कर लो, इधर दिख रहे हैं स्लाइड्स। आप मोबाइल में ज्वाइन हुआ है? हेलो, सबको विजिबल है स्लाइड्स अदर देन सतीश सर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The interconnections between these microsystem is called as mesosystem. इसका मीनिंग क्या होता है? होम एंड स्कूल दे आर इंटरकनेक्टेड है। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे रहते हैं, बच्चे वैसे घर में बिहेवियर करते हैं। घर में का एनवायरनमेंट कैसे रहते हैं, वैसे स्कूल में बच्चे बिहेव करते हैं। दीज टू आर इंटरकनेक्टेड, दीज टू माइक्रोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर बच्चे स्कूल में बहुत नॉटी करते, बहुत रोते, ऐसे उनका बिहेवियर रहते स्कूल में, सो देन द टीचर विल आस्क टू द पेरेंट्स, घर में भी बच्चे ऐसे करते हैं क्या आपका? सो कभी कभी पेरेंट्स विल आस्क टू द टीचर, घर में तो पढ़ाई नहीं करते, बहुत खेल में जाते हैं, ऐसे बोलते, दैट दे विल टीच विथ टॉक विथ टीचर। सो बिकॉज दिस both system have interconnected, that interaction between the different microsystems we called as mesosystem. That one we called as a mesosystem. Well, mesosystem does not have direct impact on the child. It can indirectly shape the child experience and develop by the affecting the relationship and interaction within the child's immediate environment. अगर स्कूल अच्छा हो तो बच्चे घर का एनवायरनमेंट में भी अच्छा रहता है। अगर घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं तो बच्चे डिस्टर्ब रहते स्कूल में। सो बोथ आर नॉट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो तो दिस हैव लिंक, दिस टू microsystem have link. So that is the mesosystem. It will influence indirectly. घर का कल्चर कैसे रहते हैं वैसे बच्चे स्कूल में बिहेव करते हैं, स्कूल में कैसे सिखाते हैं वैसे जाके घर में बच्चे बिहेव करते हैं। So that why these mesosystem have indirect influence on the child growth. An important of mesosystem is a crucial understanding how child's different microsystem work together, potentially conflict, influence their overall growth and well-being. It highlights the importance of fostering positive connection between various settings in the child. That is the different microsystem में child का behavior क्या है, we will interconnect and interact करके child का growth के लिए हमने यूजफुल कर सकते। दैट इज द मेसोसिस्टम। क्योंकि डिपेंड्स स्कूल में कैसे रहते हैं, घर में बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, बहुत डर लगते, बोले तो पेरेंट्स कैन कोरिलेट और कनेक्ट इट विद स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल में भी ऐसे रहते हैं क्या? अगर बच्चे स्कूल में डल है, एक्टिव नहीं है, तो टीचर कैन कंपेयर होम एनवायरनमेंट, घर में भी ऐसे रहते हैं। सो दिस विल हेल्प द ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ द child. To assess the growth development of the child, it will help. That's why it is called as mesosystem. All of you understood what is the concept of mesosystem? Hello? Yes. Connection between two microsystem. Then exosystem. So third one is exosystem. What is exosystem? Indirect environment. Some environments, some social environment, whatever surrounding is their child's surrounding, that one we call as exosystem. Whatever thing, society ho, other groups ho, community ho, so everything that is outside this microsystem we call as a exosystem. Indirect environment. अब आपका सोसाइटी कौन सा सोसाइटी में आप रहते, उसका इफेक्ट आपका घर में भी इफेक्ट होता है आपका। सो दैट सिस्टम, दैट एनवायरनमेंट वी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट इज माइक्रोसिस्टम। मेरा घर इज माइक्रोसिस्टम, मेरा घर कौन सा एरिया में है, दैट इज एक्सोसिस्टम। सो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट. The exosystem represents the larger social system that child does not directly participate in that, but still have indirect influence on their development. This can include the parents' workplace, local community, or mass media. This includes exosystem where the place the parents working,
पेरेंट्स का वर्किंग प्लेस क्या है, दैट इज आल्सो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर पेरेंट्स वर्क प्लेस क्या है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली बच्चे में असर नहीं पड़ता है, लेकिन इट विल इफेक्ट द चाइल्ड. अगर फादर ने अगर कोई रेस्टोरेंट में और बार में वर्क कर रहा है, तो द वर्किंग प्लेस ऑफ फादर विल इम्पैक्ट ऑन दी हिज सन. कोई बच्चे का फादर बार में काम कर रहे हैं, तो बाहर का और सन दिस बच्चे का कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट द वर्किंग प्लेस ऑफ पेरेंट्स कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट द growth and development behavior of the that particular children. That is why the parents workplace and local community where you are residing, the community, that area, that village, whatever thing that is indirectly influencing the child growth development behavior is called as exosystem. And mass media is nothing but TV, आजकल तो YouTube, इंटरनेट से सारे चीजें आते हैं ना, वो बहुत अलग अलग एप्स हो, अलग अलग मीडियाज हो, दैट ऑल वी कंसिडर एज ए मास मीडिया. फॉर एग्जांपल टीवी कंसिडर किए तो टीवी में क्या दिखाते, दैट इज ऑल इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर टीवी में ज्यादातर वायलेंस, ज्यादातर अलग अलग चीजें दिखाने लगे, तो बच्चे उसको देख के वो उसका अडॉप्ट कर लेता है. सो दैट इज एक्सोसिस्टम, दैट इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द चाइल्ड्स growth and development. That's why this exosystem is also important in the growth and development in the child. So that indirect impacts में क्या होते हैं, while child is not directly involved in the exosystem, but events, decisions, structures within this system can still impact the child lives. For example, a patient job loss, community-wide event can indirectly affect the child well-being and development. So अगर पेरेंट्स का जॉब लॉस हो गया और कम्युनिटी में सर्टन कल्चर, सर्टन रिचुअल्स आर नॉट good, then indirectly that will affect the child well-being and development. That is the exosystem. Importance of exosystem: the exosystem highlights the far teaching and often overlooked ways in which broader social environment can shape the child experience opportunities, even if child is not directly engaged with this system. ये तो बोलते हैं ना, वातावरण, घर का वातावरण इज माइक्रो सिस्टम. बाहर का वातावरण बोलते हैं ना, हम गांव का वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों को हम बाहर स्कूल में जाते. सो दैट इज द एक्सोसिस्टम, बिकॉज चाइल्ड विल लर्न बाय सीइंग द दैट सिस्टम, इवन दो द चाइल्ड इज नॉट गोइंग विथ other people, but it will see in the community what the people are practicing, what the people are doing, then it will learn that behaviors. That's why the exosystem is also important. Then macro system. The word macro denotes all the things macro: culture and societal influence, indirect shaping, and the importance of macro system we learning. The macro system represents the broader cultural, social and institutional influences. इसमें क्या होते हैं, सारे cultural influences, social influences, institutional influences, everything will includes in the macro system. Shape of other systems in the child's life, which includes the values, beliefs, laws, customs, resources that prevalent in child's overall cultural context. Because India is have different cultural context, different traditional things, and social behaviors are different. So the overall macro system, including all these cultural, social and institutional influences, will also shape the child's behavior and growth. That's when we call it as a macro system. कोई देखो, अगर फॉरेन का कल्चर देखो, बच्चे, हमारा इंडिया में क्या है, हर एक बच्चे क्या है, सीनियर्स को रेस्पेक्ट देते हैं, कोई एल्डर आए तो उसको नमस्कार करते हैं, कुछ तो रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसे हमारा कल्चर है. लेकिन फॉरेन में वैसा नहीं होगा. कोई कंट्रीज में क्या है, फॉरेन्स को रेस्पेक्ट नहीं देते और रेस्पेक्टफुली बात नहीं करते. हम बड़े लोगों को रेस्पेक्ट का वर्ड यूज करते, जी बोलते हैं. ऐसे रेस्पेक्ट कोई कल्चर में, कंट्री में नहीं दे होगा, बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट वैसे रहते हैं. रिलेशंस का बीच में
ब्रदर सिस्टर मदर फादर, उनका रिलेशंस का बीच में सर्टन कस्टम्स कल्चर क्या रहते हैं, रिस्पेक्ट, वो अलग अलग कंट्री अलग अलग सोशल कल्चर बैकग्राउंड का वजह से डिफरेंट हो सकता है. दैट्स आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Then while macro system does not directly interact with child but indirectly shapes the child's development by influencing the structures, policies and norms that are present in the child's immediate indirect environments. And importance of macro system. The macro system is a crucial understanding how cultural, social factors, socio-economic status, race, gender, unique opportunities, challenging for child development. So whatever things these are, हमारा कल्चर में क्या है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे हम कल्चरली बच्चों को बोलते हैं ना, वो बच्चे सीख जाते हैं. दैट इज द मैक्रो सिस्टम. सोशल थिंग्स रहते हैं, सो दैट ऑल इंक्लूड्स एंड दैट विल शेप द चिल्ड्रंस. दैट इज द थिंग. वी शुड रेस्पेक्ट द वुमन. ये सारी चीजें हमारा कल्चर में, हमारा सोसाइटी में फॉलो करते आ गए. सो दैट इज द थिंग्स द चाइल्ड विल लर्न. So that is the macro system. Overall, that country ka, that region ka cultural, social and other political influences also matters with the change in the कोई country में क्या रहते हैं, उधर तो सर्वाधिकार रहते हैं. सो उधर का पॉलिटिकल मैटर्स क्या रहते हैं, उधर का रूल्स एंड रेगुलेशन कंपल्सरी अलग अलग रहते हैं. सो दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द चाइल्ड का डेवलपमेंट ग्रोथ का अलग अलग रहते हैं. इवन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस उधर कैसे रहते हैं. हमारे पास तो प्रजाप्रभुत्व है, वी विल सेलेक्ट द गवर्नमेंट. कोई कंट्री में तो सर्वाधिकार रहते हैं, वो लोग क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके ऊपर उधर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिहेवियर विल बी डिफरेंट इन दैट कंट्री. दैट इज द माइक्रो सिस्टम. देन नेक्स्ट वन इज क्रोनो सिस्टम. सो इन दिस लाइफ chronological order कैसे ग्रोथ एंड बिहेवियर होते हैं. क्रोनो मीन्स chronological, nothing but chronological. The chrono system encompasses the changes and transition that occurs over the course of child's life, both within the individual and their environment. This can include major life events such as family move, loss of parent, as well as more gradual changes like child's own physical and cognitive development. लाइफ ट्रांजेक्शन, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. अगर कोई पेरेंट, बच्चे का पेरेंट्स उनका बचपन में ही डेथ हो गया, सो उसका बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिहेवियर अलग रहता है. सो गर्ल, अगर गर्ल का बिहेवियर लिए तो वो बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज उनका लाइफ में एक ट्रांजिशन होता है. सो द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड बिहेवियर एंटायरली डिफरेंट बिकॉज ऑफ फैमिली मूव. फैमिली मूव, एक घर से दूसरा घर जाते, सो उनका लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. उनका बिहेवियर हो, उनका डेवलपमेंट हो, अलग अलग. सो एंड ग्रेजुअली द चाइल्ड इज आल्सो increasing by time, by virtue of time, his own physical and cognitive development भी हो सकते. That is the life transition. This is the individual भी हो सकते हैं, इसका changes child's individual life में भी हो सकते हैं, and their environment. Suddenly the environment में भी अलग अलग changes हो गए तो that will also. Environment means either not that बारिश होना, ज्यादा धूप होना, वैसा नहीं, लेकिन in context with the social and cultural and relational things, that is the environment. अगर उनका रिलेशंस में कुछ तो झगड़ा हो गया, अगर ब्रदर्स डिवाइड हो गया, दैट विल लीड्स द चेंजेस इन द चाइल्ड. घर में होता है ना, डिवाइडेशन होता है ना, दोनों ब्रदर्स डिवाइड हो गए तो छोटे बच्चे रहे तो वो देखता है कैसे झगड़ा करते हैं, क्या होते हैं आगे, ऐसा रहते हैं लाइफ. तो इट विल इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स. दैट इज द लाइफ ट्रांजिशन. डिफरेंट सिचुएशन इन द लाइफ विल development, because this theory will discuss about overall person को बात करता है. It is not only for child, overall व्यक्ति का behavior, growth and development के लिए बात करते हैं, but majorly focuses on child. Child में ज्यादातर effect होता है. This theory
it is telling this transaction for all even adult persons also, but child में ज्यादा we can apply this theory in child also. Child में ज्यादातर ये effect होता है, so that's why it is growth and development theory. The child's and another क्या होता है अगर उनका लाइफ में कुछ बदलाव आ गया, अगर एकदम उनका फाइनेंशियल स्टेटस हाई लेवल था, अगर कुछ तो लॉस के वजह से एकदम फाइनेंशियल स्टेटस लोअर लेवल पे हो गया, so that is also one transition. Then also the behavior, entirely growth pattern, everything will be changes. That is the life transition chrono system. Then historical context. This chrono system considers the broader historical context which child developing, including social cultural changes that can shape the child's experience opportunities over a time. Over a time means from primary to high school कौन सा type of social हिस्ट्री है, कौन सा तरफ का कल्चरल सोसाइटी में, कौन सा तरफ एनवायरनमेंट में चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज द हिस्टोरिकल. हाई स्कूल में बच्चे कैसे बिहेव करते, इफ यू सी दी इज फ्रॉम हिज प्राइमरी, which school, which society, which cultural background the child has, this child has grown, that is called a historical context. From beginning to that time, the changes, development happened in the over a time is called as a historical context. The importance of chrono system. Importance क्या होता है chrono system का? By incorporating dimensions of time, chrono system highlights the dynamic and developing nature of child development, understanding the need to consider how both individual environmental changes impact the child growth and well-being over the course of their life. This chronological system is also explaining how the growth and development will affected by this life transition and historical context. रहते हैं ना, कोई बच्चे स्कूल में रहते हैं, हाई स्कूल में रहते हैं, इवन द स्कूल इज नॉट दैट मच गुड, इसमें हाई क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, फिर भी बच्चे बहुत फर्स्ट आते हैं, रैंकर रहते हैं, बिकॉज इफ यू सी दी हिज इनिशियल स्कूल्स, उनका प्रीवियस स्कूल बहुत अच्छा रहता है. सो दैट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. देन एप्लीकेशंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट. इस थ्योरी को हमने कैसे अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए? होलिस्टिक अप्रोच, दैट इज ब्रॉनफेरेंस ecological system theory has been widely accepted in the field of child development as it provides the comprehensive framework for understanding this interconnected factors of child development. चाइल्ड डेवलपमेंट हमको समझाने के लिए सारे चीजें देखना पड़ता है हमको, ये घर का एनवायरनमेंट कैसे है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे है, ओवरऑल मैक्रो सिस्टम को. सो दिस थ्योरी इज हेल्पिंग अस फॉर assessing the overall child development. Then intervention strategies, we can intervene by seeing where the fault is there. For example, this theory has also informed intervention strategies and programs aimed at supporting children and families, as it is highlighted in the importance. अगर स्कूल में बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, then we can intervene, we can see स्कूल में तो सारे ठीक है, लेकिन इनका घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? घर में जाके एक पेरेंट्स को बुला के उनको हम इंटरव्यू कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं आपका बच्चे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, क्या है प्रॉब्लम? सो दैट्स व्हाई इंटरवेंशन स्ट्रेटजी करने के लिए भी दिस थ्योरी विल हेल्प्स. देन रिसर्च इम्प्लीकेशंस. चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड ग्रोथ में, अगर हमने सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कल्चर, सोशल कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रहते बच्चे का, इसका बारे में इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द रिसर्च इन दिस फील्ड. दैट इज द it is also helpful for the research in this child growth and development field. That is the application of this theory. Then limitation of this theory is complexity and scope. इसका क्या होता है, बहुत complexity. Ecological system में हर चीज को ये consider करते हैं. That's why this theory is one of ecology system is one of the its strength and it also challenge, because ecology system consists everything. उसमें everything सब चीजें को पकड़ के आप अप्लाई करने लगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स. इट विल नॉट स्पीकिंग सिंपली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट. इट इज इकोलॉजिकल स्टडी. इकोलॉजी मींस
everything, even animals, birds, plants, whatever things surrounding us, that is called ecological system. That's why it is strength also, it is challenge also. That is the complex है ये theory. So पूरा development समझने के लिए पूरा ecological system को हम study करना पड़ता है. Then emphasis on environment. So environment में ज़्यादा emphasize करते हैं. Some critics have argued that theory places too much emphasis on environmental and social factors. So कोई कोई का वाद क्या है कि दिस theory ज्यादा environment and social factor में फोकस करता है. So it is ज्यादा होता है, इतना भी नहीं रहते, इतना भी नहीं हो सकता है, ऐसे उनका criticism है इस theory के ऊपर. Then contextual limitation. This theory has been primarily developed and applied in the Western industrialized society and is applicable to diverse cultural context and non-Western societies has been questioned. This theory ने Western culture, same culture रहते maximum अलग अलग देशों में, उधर अप्लाई करके देखा है. डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स जैसे हमारे देशों में इसका अप्लीकेबिलिटी कैसे होते हैं उसका clarity नहीं है, because these theories have developed and applied in the Western industrialized societies. But in like India is a diverse country, different cultures, economical अलग-अलग तरीके से, different languages, different beliefs, different things are there. So in this context में इसका theory का कैसे exact application होता है ये हमको पता नहीं. But we can apply, but the limitation is there because the theory basically developed by the Western industrial society को देख के theory develop किया था. It will also have the role in the Indian context also, but clear नहीं है. That is the limitation in this theory. In conclusion, I am difficult in spelling this name. Bronfenbrenner's ecological system. You can read because I am poor in English, so even this name is very difficult to pronounce me. So you pronounce as much as you know this name, because this is a lengthy one. I will divide. Bronfenbrenner's ecological systems theory has had profound impact on field of child development, providing a comprehensive framework, understanding a complex and interconnected social concept, child growth, well-being. इसका importance, overall conclusion क्या है? This Bronfenbrenner's ecological system has given the lot of impact or messages to understand the child development, providing the comprehensive framework for understanding the child growth and total well-being development. Well-being का मतलब क्या होता है? So well-being बोलते हैं ना, health is a not merely absence of disease, is a physical, mental, social dimension. Well-being बोलते हैं हम. So that is the overall well-being, कैसे रहते child का well-being के लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दिस थ्योरी हेल्प कर. समझ में आ गया सबको? हेलो, एनी डाउट? Yes, sir. I am trying as much as possible because these are newer things. मुझे आपको कैसे समझना, as much as possible I will explaining you, but I will give the material also, this slides also. You will also understand once the concept is clear. You will understand. So this one, next one is this Kohlberg's theory of moral development. This is a small theory. The Lawrence Kohlberg, a renowned psychologist, developed this comprehensive theory, stages of moral developments in the individual. Moral means moral को क्या बोलते हैं हम? नैतिक शिक्षण, नैतिक वैल्यूज बोलते हैं ना, नैतिक, यही वर्ड होते हैं ना. मॉरल का मीनिंग क्या होता है हमारा संस्कृत में? मॉरल. सो मॉरल theories, मॉरल वैल्यूज, मॉरल थिंग्स कैसे डेवलप होते हैं एक इंडिविजुअल में. फॉर एग्जांपल, कोई एक आदमी रोड साइड गिरा हुआ है. सो एक पर्सन क्या करता है? इस पर्सन को जाके हेल्प करता है, और दूसरा एक पर्सन क्या है, इसको देखता भी नहीं, वापस जाता है. सो his moral things are different.
इनको क्यों हेल्प करने का मन आया, इनको क्यों मन नहीं आया. सो इट डिपेंड्स ऑन different. What is the theory behind this moral things difference? So how the moral things will develop in individuals? So that one, this Kohlberg theory of moral development is explained. So stages of moral development. क्या होता है? प्री कन्वेंशनल. इंडिविजुअल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड परस्यूइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. मॉरलिटी क्या आता है? प्री कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, रॉन्ग थिंग्स नहीं करना है, मुझे कुछ अफेंस नहीं करना है, क्योंकि दैट विल लीड टू द पनिशमेंट. सो ये मुझे पता है, मैं सेल्फ इंटरेस्ट से क्या करता हूँ, नहीं अगर मैंने कुछ गलत किया मुझे जेल में डाल सकते, मुझे पनिशमेंट मिल सकते. दैट्स व्हाई आई विल नॉट डू एनी अनएथिकल थिंग्स. दैट इज प्री कन्वीनियंशियल. सो ये मेरा दिमाग में रहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, ओन सेल्फ इंटरेस्टेड. मैं क्यों क्राइम नहीं करते, मेरा सेल्फ ओन इंटरेस्ट है, नहीं बा मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए. सो अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड परस्यूइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट के वजह से प्री कन्वीनियंशियल मॉरल डेवलपमेंट. ये खुद का मन पे आते हैं बिकॉज ऑफ हिज सोशल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, व्हाट इज सही है गलत है. ये दिस मॉरल डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ प्री कन्वीनियंशियल. कन्वेंशनल का मतलब क्या है? सोसाइटी कैसे एक्सपेक्ट करता है, सोसाइटी में सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है. सो टू मेंटेन दैट सोशल ऑर्डर आई विल अडॉप्ट द मॉरल वैल्यूज. बड़े लोगों को अपोज नहीं बात करना है, किसी को कोई बात के लिए मुझे कभी कभी वो कुछ बोले तो भी हमको सुनना पड़ता है. सो दिस सोसाइटी will have the expectation. अगर कोई बड़े लोग कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनना है. So the society will expect that type of things. Then social norms रहता है, certain rules and regulation. तो social norms क्या है, society क्या है, social things क्या है, everything will be there in that chapter के पार्ट. अगर आप एक बार वो चैप्टर में थरो हो गए, एक बार पढ़ लिया सोशल नॉर्म्स क्या है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. That's why that chapter is very important. अभी मुझे social norms बताने को नहीं होते. If you read this social norms, social things, what are the cultural things, in that chapter you will easily understand what are the social norms मतलब क्या है. मुझे explain करने का जरूरत नहीं. So because of the society or social norms are expecting आपको ऐसे behave करना है, ऐसा रहना है. To fulfill that thing, my moral values or moral things are there. That is the कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट. मुझे ये सोसाइटी में रहना पड़ता है, ये गांव में रहना है, तो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट गांव में रहता है, उसको मैं अडॉप्ट करना पड़ता है, लेना ही पड़ता है मॉरल वैल्यूज को. सो दैट इज द कन्वेंशनल वन. ये प्री कन्वेंशनल क्या रहते, कौन सा भी गांव में रहो, कौन सा देश में भी रहो, कौन सा सिचुएशन में रहो, लेकिन सेल्फ इंटरेस्टेड रहते, मुझे गलत काम नहीं करना रहते. बट कन्वेंशनल में क्या होता है, इनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहता है. अगर ये सोसाइटी में, ये कॉलेज में मैंने ऐसा नहीं बिहेव किया तो मुझे जॉब से निकाल देगा. सो दे प्लेस वेयर ही इज रिसाइडिंग, वेयर वर्किंग और हिज एनवायरनमेंट, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ते हैं. दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट मॉरल थिंग्स. इनको पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है. अगर अपनी एक इंस्टीट्यूशन में, सोसाइटी में है, सर्टन कल्चरल फेस्टिवल्स उनको करना ही पड़ते हैं, बिकॉज दैट सोसाइटी इज फॉलोइंग दैट रिचुअल और कल्चरल. अगर आप उसके अपोज नहीं जा सकते, आप उनके साथ मिलके आपको करना ही पड़ता है. उनको सेल्फ इंटरेस्ट है नहीं है ये मैटर नहीं होगा इधर, बिकॉज ऑफ दैट सोशल नॉर्म्स एंड सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन की वजह से ही विल फॉलो दैट थिंग्स. दैट इज द maintaining a social order is conventional one. Then post conventional, individuals develops autonomous moral principles guided by universal ethical principles and principles. इसमें क्या होता है, हाईएस्ट लेवल पे जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अडॉप्टिंग मॉरल थिंग्स. इसमें क्या होता है, आदमी का माइंड और मॉरल थिंकिंग ऐसा हो जाता है
हर एक, हम बोलते हैं ना आयुर्वेद में सर्वभूतानाम सर्व सर्वभूत सर्वभूतार्थ के लिए कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, हर एक जीवी के लिए भी हम कुछ अच्छा करना है, हार्म नहीं करना है, ऐसे थिंकिंग आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ पोस्ट कन्वीनियंस में आदमी का थिंकिंग क्या होता है, एवरीथिंग यूनिवर्सल में क्या क्या है उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगता है। दैट इज द पोस्ट कन्वीनियंस, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। किसी को भी हार्म नहीं करना है, इवन एक एनिमल को भी हार्म नहीं करना है, किसी को भी हार्म नहीं करना है, कुछ गलत नहीं करना है। सो दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल थिंग्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स मतलब ये गांव में रहो, ये स्टेट में रहो, ये इंडिया में रहो, फॉरेन में रहो, आप यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट कन्वेंशनल। The individual develops autonomous moral principles guided by universal ethical principle and personal integrity। इस तरह का मॉरल डेवलपमेंट हुआ तो वो आदमी बड़े व्यक्ति और हाईएस्ट एक अच्छा तरह का व्यक्ति बनते, तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला लोग बोलते हैं ना। सो दैट पीपल हैव दिस टाइप ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो सब लोगों को हेल्प करते हैं, सब लोगों में इनका प्रेम रखता है, उनको देखे तो भी हर किसी को एक अलग फीलिंग होते है। अगर इंडिविजुअल इफ डेवलप्स एंड अटेंड दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, दैट वन इज वी कॉल्ड एज ए पोस्ट कन्वेंशनल। तीन तरफ से मॉरल डेवलपमेंट रहते हैं। वन, ये पनिशमेंट का भय के वजह से मॉरल वैल्यूज डेवलप करते हैं। अनदर वन इज कन्वेंशनल, सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए मॉरल डेवलपमेंट। देन अनदर थिंग इज ना सोसाइटी ना ये पनिशमेंट, इट इज यूनिवर्सल, मुझे वो सारे चीजें लेना है, यूनिवर्सल एथिकल, प्रेम हो, अहिंसा हो, ऐसे त्याग हो, सो हेल्पिंग नेचर, ऐसे एक आइडियल स्टेट में चला जाते हैं आदमी। सो दैट वन वी कॉल एज पोस्ट कन्वेंशनल moral things. So once again the points are divided here. Pre conventional stage में क्या, क्यों आदमी प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए मॉरल वैल्यू डेवलप करता है, एंड सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, एंड लैक ऑफ मॉरल ऑटोनॉमीज। देखो, हैव नॉट डेवलप्ड देयर ओन मॉरल प्रिंसिपल्स बट पनिशमेंट मिलता है बोल के मॉरल डेवलपमेंट लेता है। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, सोशल नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए एंड इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए एंड लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन के लिए कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल रात 12 बजे से कोई बाहर नहीं जाना है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सो द पर्सन शुड फॉलो दैट वन। उनको 12 के आगे भी जाने का मन रहता है लेकिन ही शुड फॉलो दैट ऑर्डर, सोशल नॉर्म्स। सो एक्सटर्नल फोर्स will prohibit him. That is the thing in the conventional stage. The post conventional stage में as I explained, उनका autonomous moral reasoning रहते हैं, social contract and individual rights, ethical principles, justice, human dignity, greater good, ये सारे चीजें आ सकते हैं। Then criticism and limitation of Kohlberg theorism में क्या है, जेंडर बायस। जेंडर बायस मतलब क्या है, ये कोलबर्ग रिसर्च है ना, प्राइमरीली मेल का बारे में ज्यादा बात करते हैं, मेल पार्टिसिपेंट। इसमें फीमेल का मॉरल डेवलपमेंट का बारे में ज्यादा फोकस नहीं करते। दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म इन द कोलबर्ग थ्योरी। सो ये क्रिटिसिज्म क्या होते, कोई भी चीज बताने लगे तो यूजुअली मेन, पुरुष मतलब क्या होते हैं उसमें, वुमेन का भी बारे में बताए रहते, बट स्पेशली वुमेन का बारे में नहीं बताया। दैट इज द क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन बोलते लोग कोई कोई। सो कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से भी द वेस्टर्न कल्चर अलग रहते, उधर का रूल्स एंड रेगुलेशन मॉरल वैल्यूज अलग रहते, हमारे तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन मॉरल वैल्यूज। इधर क्राइम बोल के कहने वाला थिंग फॉरेन कंट्री में क्राइम नहीं होगा। तो दैट टाइप ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में दिस थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन। सो अगर हमारा देश में दो शादी करना गलत है,
अगर दूसरा कंट्री में गए तो इफ लीगली अलाउड देन इट इज कल्चरल डाइवर्सिटी, उधर वो सही बात है, इधर गलत बात है. सो दिस कल्चरल डाइवर्सिटी को दिस कंसिडर किए तो दिस थ्योरी इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. देन लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट, moral development more complex है and validity of this Kohlberg's theory को validity करने के लिए very problem है, complex है. That's why the questionnaire is development करके इसको validity करना पड़ता है. कोई भी theory को हम research करना पड़ता है. Usually this type of research क्या रहता है, survey or qualitative research रहता है. So to validate this theory it has arguing more complex, उतना आसान नहीं है. दैट इज आल्सो कोलबर्ग्स थ्योरी का लिमिटेशन है. एम्पिरिकल सपोर्ट मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एम्पिरिकल. एम्पिरिकल मतलब क्या है, देखने को उतना नहीं मिलता है. दैट इज द थिंग रिसर्च में, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी. आप क्या बोल रहे हो वो रिसर्च करके सच में देखने लगे तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा. दैट इज दिस लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट. These are limitation and criticism. एप्लीकेशन किधर किधर सर्च कर सकते हैं ये कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एजुकेशन में, बिकॉज एजुकेशन में हम मॉरल एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं. मॉरल एजुकेशन बोल के भी रहते हैं ना, ये फैमिली में पेरेंट्स भी मॉरल एजुकेशन कर सकते हैं हम. सम मॉरल एजुकेशन इज आल्सो एजुकेशन में हम ऐड कर सकते हैं. हो गया ना, कोई कोई स्टेट में भगवत गीता का पाठ्यक्रम को ऐड करने लगे, कोई कोई क्रिटिसाइज किया उसके लिए. सो समवन हैज आंसर्ड दैट भगवत गीता धार्मिक का नहीं है, मॉरल शिक्षण के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए है. स्वामी विवेकानंद का थॉट्स हो, परमहंस का थॉट्स हो. सो अलग अलग व्यक्तियों का थिंग्स को एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं टू प्रमोट द मॉरल डेवलपमेंट एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट. सो मॉरल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई the application of Kohlberg theory in the education. आप कितना भी बड़े हो, कौन सा भी बड़े हो, अगर मॉरल वैल्यूज नहीं है उनके पास तो दैट इज नॉट गुड. वन ऑफ द एजुकेशन डिविजन में क्या है, मॉरल अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कोई तो एक आता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, मॉरल वैल्यूज नहीं है सो देन दैट इज नॉट एजुकेशन. आप कितना भी लिटरेट हो, अगर आपका पास मॉरल वैल्यूज नहीं है दैट इज नॉट ए एजुकेशन. ये एक स्कॉलर का डेफिनेशन है. देन काउंसलिंग एंड थेरेपी, आई काउंसलिंग थेरेपी करने में भी कोलबर्ग्स का मॉरल थ्योरी यूज कर सकते हैं. देन लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस, सर्टेन टाइम्स दिस थ्योरी को हम क्रिमिनल और सोशल जस्टिस सिस्टम में केस को आर्ग्यू करने के लिए, समझने के लिए भी दिस थ्योरी को कभी कभी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट विल deals with the moral development. That is the application, but we are focusing on this education, application of this Kohlberg theory in the education. These are the conclusions and implications. The same thing, Kohlberg's theory has an impact of field on the moral psychology, understanding the ethical development. ये होता है ongoing discussion. Despite of limitations, this Kohlberg theory is important in the research field of this field, moral reasoning and decision making, and these are future directions. This theory will likely lead to the comprehensive understanding of moral development and real world applications. So moral development, moral things, कोई कोई बच्चे क्यों ऐसा है, बहुत अच्छा रहता है, कुछ भी उनका थिंकिंग अलग रहती है, क्यों उनका मॉरल वैल्यूज बढ़ा है, उसका वो एक्सप्लेन करते दिस Kohlberg's theory of moral development. So this previous theory, the Bronfen's theory and Kohlberg's theory similar लगता है थोड़ा, लेकिन Kohlberg's theory में क्या है, ज्यादा moral development का बारे में फोकस किया है. Bronfen's theory में क्या है, ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट, मॉरल भी उस पे ऐड हो जाते हैं, लेकिन दिस इज स्पेशली Kohlberg's ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए एक theory बनाया है. So up to this all of you understood? Yes, sir. Hello? Any doubt? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Because
ये सब्जेक्ट है ना, ये बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है मुझे इंग्लिश में. सो दीज आर एक्सपीरियंस्ड एंड वी नो ऑल दिस थिंग्स. ये टेक्निकल वर्ड नहीं है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. दीज आर साइकोलॉजिकल थिंग्स एंड ये थियरीज ना फील्ड में, सोसाइटी में वो देख के ही थियरी बनाया. सो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट. आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. अगर आपको अपने ये पेजर्स का कॉग्निटिव थियरी देखे तो वो चाइल्ड 2 साल तक क्या करता है, 2 साल से 7 साल तक क्या करता है, ये सारी चीजें उनका खुद का बच्चे में अप्लाई करके वो पेजर्ट ने थियरी बनाया. सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर ऑब्जर्वेबल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए दिस थियरी आपको क्लियरली पता होने के लिए. बट एज मच एज पॉसिबल आई हैव एक्सप्लेन. आपको कॉन्सेप्ट पता हो गए तो आप कोई भी बुक, कोई भी मैटर पढ़ गए तो आपको अभी समझ में आ जाता है. सो now we will start with communication. Whether slide is visible? Slide visible है? Yes, sir. What is communication? Can anyone tell? Communication का मीनिंग क्या है? What is communication? So communication is a fundamental aspect of human interaction, allowing to exchange information, ideas, emotions. It is a multi-dimensional process that encompasses both verbal and non-verbal elements, shaping our social and professional lives. There is presents we explore the concept, meaning, key characteristic, communication, providing a comprehensive understanding of these essentials. In brief, communication क्या होता है? Communication is a process. Without communication we can't transfer emotions, ideas, information. कुछ भी ट्रांसफर एक पर्सन से अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते. The communication may be verbal, non-verbal, but the things, idea, this communication process is, it will must fundamental aspect of the human interaction. अगर communication ही नहीं है तो the interaction will not happen, the things will not develop. That is the communication. Communication, it is not related with education or health. Even in part communication and health एक चैप्टर है. अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू दैट चैप्टर, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ. हाउ वी कैन टेक दिस कम्युनिकेशन इन दी हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ एजुकेशन देने के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. सो कम्युनिकेशन एंड हेल्थ, देयर इज ए सेपरेट चैप्टर. सो कम्युनिकेशन इज ए फंडामेंटल. विदाउट कम्युनिकेशन हम रह नहीं सकते. सो दिस इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. सो दिस कम्युनिकेशन एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ाई करने वाले हैं. लेकिन इन जनरल व्हाट इज कम्युनिकेशन वी विल लर्न इन द फर्स्ट. Then what is communication? Definition is like that. The communication is the process of transmitting the information, ideas, emotions between individuals or groups. It involves the exchange of facts, opinions, feeling through words, symbols, gestures, behavior. Communication is not only if you are talking, that is not communication. It is a transferring of our feelings, emotions in between the individuals or certain groups. It involves the exchange of facts, opinions or feelings through words, बोल सकते हैं, symbols, through gestures, through your behaviors also you can communicate. कभी कभी क्या होता है, we will don't talk each other, but आपका बिहेवियर देख के हमको पता चलता है ये क्या कहना चाहते हैं, इनका मन में क्या है, because of his behavior. So that is also communication.
Sometimes we will make the certain symbols, हाथ को ऊपर करते, ऐसे certain symbols दिखाते, so that is also विजडम सिंबल्स आर ये उसके ऊपर भी उनका मन पे क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, सो व्हाट इज द थिंग्स, सो you will understood that is also communication may be verbal and non-verbal. Communication can be both verbal using spoken, communication can be both verbal using spoken and written words, and non-verbal using body language, facial expression and other visual cues. इसमें क्या है, verbal means क्या होता है, if you are using word, मैंने अभी आपको वर्बली बता रहा हूं एंड आई एम यूजिंग वर्ड, शब्द का लिख के भी दिखा रहा हूं, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन कंटेन्स स्पोकन एंड राइटन वर्ड्स. अगर आपको मैं कुछ लिख के बता रहा हूं, सो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. बट राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, अगर मैं शब्दों में बता रहा हूं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. सो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग द वर्ड्स by speaking that words or writing the words, that is verbal communication. Non-verbal में क्या होता है, using body language, facial expressions and other visual cues. इसमें क्या होता है, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अवर मूवमेंट्स, बॉडी का मूवमेंट्स हो, हमारा एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो एंड बॉडी लैंग्वेज हो एंड अदर थिंग्स अदर देन यूजिंग वर्ड्स, speak other than speaking, the we will communicate our feelings, emotions or ideas through these modes. That one we call as non-verbal communication. So what is effective communication? Effective communication we will study in detail. Effective communication requires understanding and interpreting both verbal and non-verbal message. अगर आप क्या कहना चाहता है वो अगर मुझे करेक्टली समझ में आ गए, दैट्स वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेशन ये बताया, अगर मेरा मन पे क्या था, हाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन टू यू, इफ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन एज आई एक्सपेक्टेड, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मैं क्या कहना चाहता था दिस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो आपको पता चले तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो you have understood the exact meaning of this concept, definition of this concept. अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आ गया, that is communication but not effective communication. थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है आपको, सर ने कुछ बताया लेकिन उतना क्लियर नहीं है, that is communication. But what is effective communication? You should understand what I intend to tell you. इसका मतलब ये होता है, आपको ठीक से समझ में आएगा तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, वी विल लर्न इन डिटेल. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट डिफरेंट, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब रिसीवर. मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चैप्टर ठीक से समझ गए व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिवली हो गया, दैट्स व्हाई यू आर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली. अगर आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट. एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन इज एसेंशियल पार्ट फॉर मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, mutual understanding. It is a fundamental aspect of human interaction. So key driver of personal, professional and organizational structure. समझ में आ गए व्हाट इज कम्युनिकेशन? हेलो? Yes. बिकॉज ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल बोलते हैं ना, सो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते. इवन टीचिंग का डेफिनेशन में हम पढ़ाई किया था, इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन वर्ड उधर भी, विदाउट कम्युनिकेशन टीचिंग विल नॉट हैपन. सो कम्युनिकेशन नीड है, हर एक चीज के लिए कम्युनिकेशन नीड है. सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं. देन ओरिजिन ऑफ दिस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दिस वर्ड किधर से आ गया? तो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस टाइप. हमारा आयुर्वेद में तो ये रहता है, कोई भी शब्द का वो किधर से आया वो निरुक्ति ढूंढते हैं ना. सो लाइक दैट द ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का टर्म आया है लैटिन वर्ड कम्युनियस,
इसका मतलब होता है कॉमन एंड कम्युनिकेट. बेस्ड ऑन दीज टू लैटिन वर्ड्स द टर्म कम्युनिकेशन हैज ओरिजिनेटेड. सो इसका मतलब क्या होता है, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और क्रिएट ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. देन social construct. Social construct क्या है, it is very crucial for the human social life. Allow the social structures. What are the social structure? आपको social structure क्या है इस इन डिटेल आपको समझना चाहे तो you have to go for that, refer that के पर chapter. Social structure क्या है आपको आइडिया आ जाएगा. Then it is a dynamic process that evolves with changing culture and technological context. Communication है ना डायनामिक प्रोसेस है. पहले लोग क्या करता था, डायरेक्ट बात करता था, बाद में लेटर आ गए, लेटर से लिख के पत्र व्यवहार चालू हो गया, डाक का हो गया, बाद में मोबाइल फोन्स आ गया, बाद में इंटरनेट आ गया, मेल हो गया, मेल आ रहे, अभी तो वीडियो कॉलिंग. सो डायनामिक प्रोसेस, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी एंड कल्चर चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहे, सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो changing, communication methods are changing. So that's why this is a social construct. पहले जमाने में कैसे था कम्युनिकेशन, एक वन पीपल टू अनदर पीपल, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, अगर वो आमने सामने मिला तो ही उनका कम्युनिकेशन होता था. बट नाउ वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर फ्रॉम वर्ल्ड में किधर भी हो हम कम्युनिकेट कर सकते. सो इट इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज ऑन गोइंग. आगे क्या पता नहीं कैसे तरह का टेक्नोलॉजी आ सकते हैं. कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की वजह से वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस. सो दिस इज नॉट ए वन टाइम इवेंट बट कंटिन्यूअस फ्लोस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. दिस इज ए communication is always a continuous process. Then definitions of communication, अलग अलग scholars, अलग अलग authors ने थोड़ा definition दिया है. We will see the C.G. Brown क्या बोलते हैं, communication is the transfer of information from one person to another, whether or not it elicit confidence, but the information transferred must be understandable to the receiver. According to this author क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने, ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वी कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया, वेदर इट इज नॉट eliciting the confidence, but the information transferred should be understandable by the receiver. For example, he is sender, he is receiver. सेंडर क्या बोलता है, हेलो. सो रिसीवर हेलो रिसीव करते हैं, हेलो क्या है उसको समझना चाहिए दिस रिसीवर. अगर दिस इंफॉर्मेशन को, हेलो इंफॉर्मेशन को ये समझ में नहीं है, ये क्यों हेलो बोल रहे हैं, क्या है, हेलो इज जस्ट एग्जांपल. सो दिस इंफॉर्मेशन को रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो दैट विल नॉट कम्युनिकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, दैट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय टू द रिसीवर. रिसीवर को समझ में आना चाहिए, दैट इज द थिंग. अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे, रिसीवर को समझ में नहीं आ रहे बिल्कुल, देन इट इज नॉट ए कम्युनिकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5th क्लास का बच्चे को जाके बायोस्टैट सिखाने लगे तो क्या होता है, बच्चे को आप तो कुछ तो सेंड कर रहे हैं, बट रिसीवर स्टूडेंट्स, दैट बच्चे को कुछ भी पता नहीं चलता है, देन दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑथर. कम्युनिकेशन का मतलब ही वही होता है ना, मुझे क्या पता है आपको भी पता होना चाहिए. अगर मुझे क्या पता है आपको समझाने में फेल हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहे, देन दैट इज नॉट ए कम्युनिकेशन. दैट इज द डेफिनेशन. देन पीटर लिटल क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज द process by which information is transmitted between individuals or organizations so that an understanding response result. ये सेम मीनिंग. अगर कम्युनिकेशन के वजह से कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है, the response will be understanding.
ये x को ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ये सेंडर क्या करता है, x को ऐसे नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर बोल के लिखना है। देन द रिसीवर को समझ में आ गया, ही विल अंडरस्टैंड एंड ही विल राइट एक्स एज ए एक्स स्क्वायर। अगर इनको पता चल गया ये information, that is the understanding response result, then he is responding in the way like he is writing x as a x square, because he is giving the information x should be written in this context as a x square. If receiver is writing x को x square बोल के लिख रहे बोले तो that is the understanding the response result. He समझ गया, ये receiver समझ गया, then only he is writing x as a x square. That is the definition of this author. Then Alan Lewis क्या बोलता है, communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It involves the systematic and continuous process of telling, listening and understanding. इसमें क्या होता है, आपको कुछ पता है, दूसरों को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, continuously telling. It is a process of telling. Sender will be telling, मुझे बोलना है, I am telling. किसको बोल रहे हैं, he is listening and the understanding should be happen. So it is a process of telling, listening and understanding. ये तीनों चीजें होता है दिस कम्युनिकेशन। तीनों चीजें चाहिए, बोलने वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए एंड समझ भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। बोलने वाला भी है, समझने वाला भी है, सुनने वाला भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो दैट इज नॉट कॉल। क्लास में कुछ बोलते हैं हम, बच्चे सुनता भी है, लेकिन बाद में पूछे आपको क्या समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आ गया, सो that should not happen. That is why the communication is sum of all the things. Telling, listening and understanding is called as communication. These are the different definition by different scholars. The meaning of communication क्या है, sharing of information. of information तो share करता है, one it is a process of sharing information, ideas, emotions between individuals or groups in two-way process. Effective communication requires both the transmission of information and understanding of the receiver. That's why simple communication and effective communication का difference क्या है? See this according to this definition, telling, listening and understanding should be there. अगर telling चलो चलो है, listening भी चलो है, समझना चलो नहीं है तो this is simply communication, not effective communication. Effective होना है तो understanding भी होना चाहिए. So it is a understanding of the receiver creating the two-way exchange, and it is always two-way exchange. two-way process रहते, one way नहीं रहते. अगर आप कुछ बताया स्टूडेंट्स को, then the students will give feedback or they will give the response. The communication always two ways, one way नहीं रहते. आप इनको बताते हैं, आप कुछ तो feedback दे देते. So that's why it is two-way process. One-way process तो नहीं हो सकते communication, क्योंकि you are telling to another person or group of people. Then exchange of ideas, flow of information, knowledge between sender and receiver. Sender means who will telling, receiver means who is listening. Then mutual understanding. The ultimate goal of communication is create mutual understanding where the receiver comprehends the intended message. मैंने बोला स्टूडेंट्स को, मैंने क्या बोला, साइलेंस, बी साइलेंस. साइलेंस. इधर टीचर इज सेंडर, स्टूडेंट्स आर रिसीवर्स. मैंने साइलेंस बोल के उनको मैसेज दिया, देन स्टूडेंट्स आवाज करते रहते, देन दे विल बिकम साइलेंट. दैट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वेयर द रिसीवर कॉम्प्रहेंड्स द इंटेंडेड मैसेज. बच्चों को समझ में आ गया, सर चुप बैठो बोल रहे हैं, सो यू हैव टू कीप क्वाइट. दैट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सेम कॉन्सेप्ट रहते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग मेथड से कॉन्सेप्ट रहते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कोर कॉन्सेप्ट. Then characteristic of communication. Communication का characteristic क्या है? Involves at least two people. दो लोगों का बीच में ही communication हो सकते हैं. अगर एक ही आदमी का बीच में communication नहीं होता है, it needs at least two persons. That is the characteristic of communication. Communication requires the presence of at least two individuals, sender and receiver. Sender initiates the message while the receiver interprets and responds to it. सेंडर ने क्या करते, कुछ मैसेज
करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम द सेंडर, जुलाई में आपका एनटीटी एग्जाम है, आई एम द सेंडर, द एनटीटी एग्जाम जुलाई में है, दैट इज द मैसेज. अगर आप रिसीवर है, आप लोग रिसीव किया एनटीटी जुलाई मंथ में है, यू आर द रिसीवर्स एंड यू विल इंटरप्रेट एस, सिर्फ सिंपली मुझे 2 महीने हैं, सो आई हैव टू रीड, दैट इज यू हैव टू इंटरप्रेट दैट मैसेज. आपको रिसीव किया जुलाई में एनटीटी, रिसीव करके चुप बैठे, सो दैट विल नॉट गुड कम्युनिकेशन. उससे क्या होना है, आपको इंटरप्रेट करना है, रेस्पॉन्ड करना है वो मैसेज को. देन दैट इज द concept characteristic of communication. Then requires a message. Every communication must convey the message. कुछ तो कुछ मैसेज रहते हैं उस पे कम्युनिकेशन में. विदाउट मैसेज वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होते. कुछ तो मैसेज रहते हैं कम्युनिकेशन में. So which forms subject matter of the interaction. Without message there is no communication. वो मैसेज ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, वेदर रिलेटेड टू पर्सनल थिंग्स, फैमिली थिंग्स, whatever things, that is a message. Whatever things you are telling, that one we call as a message. आप कुछ विश कर रहे हैं, that is also message. हैप्पी बर्थडे, किसी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, so that is the message. So that is the विदाउट मैसेज कम्युनिकेशन नहीं है. हम क्या बोल रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द मैसेज. उसको जनरल ब्रॉड टर्म में हम मैसेज कहते हैं. देन इट मे बी वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ. ऐसे पहले हम बताया था, वर्बल भी हो सकते हैं बाय मींस ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स. नॉन वर्बल मींस गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन. अगर कोई घर में और हम अगर कुछ फ्रेंड्स अलग अलग दूर दूर हो रहे हैं, अगर उनको बोलने को नहीं आ रहा, अगर रो रहे, सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग. अगर कोई रो रहे बोले तो हमको समझ में आ जाते हैं, मैसेज दे रहे, ही इज इन दी, उनको अच्छा नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो अच्छा नहीं लगा. सो दैट इज द मैसेज इन दैट कम्युनिकेशन. द मैसेज इज नथिंग बट व्हाट यू हैव टू, आपको क्या बोलना चाह रहे, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे, क्या एक्सप्रेशन दूसरों को देना चाह रहे हैं ना, दैट इज द मैसेज. मैसेज इज ए जनरल टर्म. सो हियर इट मे बी वर्बल, नॉन वर्बल और इट मे मिक्स. आप बोल भी सकते हैं, ऐसे सेम टाइम यू कैन आल्सो डू द गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, बट इट इज इन द वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ फॉर्म में रहता है. वर्बल में स्पोकन एंड राइटिंग, नॉन वर्बल में क्या होता है, अलग अलग मेथड आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस हो, गेस्चर्स हो, बॉडी मूवमेंट्स हो, आई कांटेक्ट से भी हम बात कर सकते हैं कभी कभी, दैट इज नॉन वर्बल. आई कांटेक्ट टीचिंग में बोलते हैं ना, बच्चों के साथ आई कांटेक्ट रहना है, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड्स. आई कांटेक्ट रहना चाहिए. सो देन फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए. हमारा अपीयरेंस इज आल्सो कम्युनिकेशन. अगर मैंने व्हाइट कोट पहन के किधर तो गए मार्केट में, दैट इज ए कम्युनिकेशन. बिकॉज ऑफ मेरा अपीयरेंस लोग समझ जाते, तो ये ही इज ए डॉक्टर. सो बिकॉज ऑफ अपीयरेंस, अगर मैंने ब्लैक कोट पहन के गए तो पीपल विल अंडरस्टैंड इन द मार्केट ही इज ए लॉयर. अगर मैंने व्हाइट कोट करके मार्केट में गए तो लोग समझते हैं डॉक्टर है, इनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए हर एक रेट ज्यादा बताते हैं. सो दैट इज कम्युनिकेटिंग द पीपल. देखो आप मार्केट में जाके कोई एप्रॉन पहन के आप मार्केट में जाओ, लोग 10-15 रुपए आपको ज्यादा बताएगा, बिकॉज द अपीयरेंस, आवर अपीयरेंस इज कम्युनिकेटिंग विद दैट, ही विल अंडरस्टैंड. अगर हमने 10 रुपए ज्यादा बताया तो भी ही विल गिव, बिकॉज ही इज ए डॉक्टर, ही हैज ए मनी. दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल हैपन. दैट इज द बेस्ड ऑन अपीयरेंस आल्सो द कम्युनिकेशन विल हैपन. आप बोल नहीं रहे उनको मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस दे विल अंडरस्टैंड थिंग्स. Then two-way process, as I explained, it is a effective communication in a two-way process. Receiver provides the feedback to the sender. हमने किसको कुछ बताया, वो फीडबैक देते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस. अगर मैंने अभी ये क्लास कर रहे हैं, आपको बाद में पूछता हूँ मैं लास्ट में, अगर आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, वेदर यू आर क्लियर और नॉट, देन यू विल रिस्पॉन्स मी. यस तो बोलता है, नो तो बोलता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट इज द टू वे प्रोसेस. Whether you are telling yes or no, that is different thing, but you are responding. That is it. Communication is a two-way process. So अगर communication को हम effective करना है, so effective communication के लिए there is 7 C's. 7 C's मतलब क्या है, अगर आप communication को effective करना चाहता है, effective बनाना चाहता है, so there is a principle of 7C. 7C का मतलब क्या है, we will see.
So clear. First C indicates clear. Whatever message you are giving, that should be clear. Avoid complex words, phrases. Ensure the receiver understand the intended meaning. आपका आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर बच्चों को क्लास में आप क्या बोल रहे हो उनको समझना चाहिए, तो आप क्या करना है, आपका लैंग्वेज, आपका मैसेज क्या है ना, आपका थिंग्स शुड बी क्लियर एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करनी। वेरी यूजिंग सिंपल वर्ड्स, सिंपल फ्रेजेस, you should give the explanation, then only the student will receive and understand. अगर आप बड़े बड़े इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से लेके बहुत डिफिकल्ट वर्ड बोल के आप सिखा रहे तो दैट विल नॉट इफेक्ट कम्युनिकेशन। सर तो कुछ तो बोल रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजीज क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, वही आप सिंपल एंड सिंपल थिंग्स, सिंपल वर्ड्स यूज करके बता रहे तो दैट विल बी, दैट विल हेल्प फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। होता है ना टीचर का बीच में भी डिफरेंशिएशन होता है, बहुत सिंपल बताते सर, सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, दैट इज द वन ऑफ द effective communication. Clearly the message or information should be clear and avoiding complex words and phrases. The receiver should usually understand. Then concise. Concise क्या होता है? The message should be conveyed in the fewest possible word without compromising the other C's of concise में बोलना है। अगर बोल रहे तो एक ही इंफॉर्मेशन मैसेज को बहुत लंबा भी बोल रहे हैं ना, उसको बोर हो जाएगा। So that is not effective. Concise, what you are intended to tell, that should be concise without affecting other things. Concisely बोलना है। Then concrete, the message should be specific and supported by facts, figures, relevant details to make it more convincing, impactful. Concrete होना चाहिए मैसेज, मतलब क्या है, स्पेसिफिक बोलना चाहिए। ये मेडिसिन इस डिसीज में, वाई डिसीज में 100% रिजल्ट है, 90% रिजल्ट है, 80% रिजल्ट है, 50% रिजल्ट है। दिस इज कॉन्क्रीट मैसेज। सिंपली इफ यू आर टेलिंग पंचकर्मा करो, इट विल क्योर्स द डिसीज वाई, डिसीज जेड, डिसीज ए बी सी, हर एक को पंचकर्मा करे तो ये डिसीज क्योर होता है। दिस इज नॉट कॉन्क्रीट। अगर आपने वमन करो, एक्स फॉर वमन, वमन करो, स्किन डिसीज में 99% रिजल्ट आएगा। सो अलग अलग मस्कुलोस्केलेटल में 80% आएगा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, it the percentage may be based on research or your observation, but if you are giving figures, data based on facts, if you are providing this information, then that is concrete. सर ने बताया 80% तो रिलीफ होने वाला है। So it should be supported by facts, figures and relevant details, researches. Then that becomes the effective communication. अगर randomly सिर्फ हमारा टीचिंग में वही होता है, कोई एक मेडिसिन ले लो, कोई एक प्रोसीजर लो, हम जनरली बता सकते हैं, हाँ उसमें भी दे सकते हैं इसमें। सो दैट विल नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ यू गिव द बेस्ट, इफ यू टेल द बेस्ड ऑन सपोर्टेड फैक्ट, फिगर्स, रिसर्च ओरिएंटेड, और आप आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप स्पेसिफिकली बताया, दिस ड्रग इज स्पेशली 100% इस डिसीज में, कंडीशन में वर्क होने वाला है। अगर दैट सब्जेक्ट को हमने कॉन्क्रीट बोलता है, दैट इज द कॉन्क्रीट मेथड ऑफ explaining the message. Giving the message is should be specific, specific होना चाहिए। So general बताए तो that will not give the effective communication. And correct, whatever message you are giving, that should be accurate, error free, use of appropriate level of language for the intended audience. Correct होना चाहिए information whatever. अगर हमने गलत information दे रहे, that is not creating the effective communication. Other threes are coherent. The message should be logical, structured, organized, and it makes the sense easy to follow. लॉजिकल होना चाहिए। आप कुछ तो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कुछ तो टॉपिक बता रहे हैं, लॉजिकल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आप कॉम्प्लेक्स थिंग बोल के बाद में सिंपल थिंग बोलने लगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट। मैसेज शुड बी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, एंश्योरिंग इट मेक्स द सेंस। अगर मैंने वात का बारे में बता के नेक्स्ट पित्त का बारे में बताता हूँ, कफ के बारे में, इट मेक सेंस। पहले वात दोष बताया, बाद में पित्त दोष बता रहे सर, बाद में कफ दोष। अगर वात बता के तुरंत मैंने कुछ तो आम का बारे में बात किया, सो
तो रिलेशन नहीं लगते उनको, लॉजिक नहीं लगते। सर ने वात वात का चैप्टर लेने के बाद क्यों तुरंत आम का चैप्टर लिया? अगर अग्नि कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप आम का कॉन्सेप्ट ले रहे, दैट मेक सेंस। अग्नि एंड आम आर समथिंग रिलेटेड, देयर इज अ लॉजिक behind this. After the Agni class आप आम का बारे में ले रहे, that means some logic is there. अगर दोष होने के बाद ये ले रहे तो that is not logic. There is no, अगर logic नहीं है तो that will not creates the effective communication. And complete, the message should be include all the necessary information and clear to call action, leaving the receiver with a complete understanding. कुछ भी बता रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे, कुछ भी टीच कर रहे, हाफ नॉलेज नहीं देना है, क्लियर करना है बच्चों को। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने हाफ नॉलेज, थोड़ा ही इंफॉर्मेशन दिया, इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन इन द स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई कंप्लीट नॉलेज, कौन सा भी टॉपिक और कौन सा भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप सिखाओ बच्चे को, कंप्लीट सिखाओ इन फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप शल्य तंत्र यूजी के लिए कितना चाहिए उसका बारे में उतना कंप्लीट सिखाओ, पीजी में कितना चाहिए उतना कंप्लीट सिखाना है, हाफ नहीं करना है। सो थोड़ा ही बता के नेक्स्ट पार्ट नहीं सिखाए तो दैट विल नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मुझे सिर्फ श्लोक आते, 2 लाइन आते श्लोक का, नेक्स्ट 2 लाइन नहीं आते, बिकॉज पहला 2 लाइन को ही ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, लास्ट का 2 लाइन को स्ट्रेस नहीं कर रहे। इसका मतलब कंप्लीट बच्चों को समझ में नहीं आ रही। सो वॉट एवर थिंग यू विल गिव द इंफॉर्मेशन मैसेज, इट शुड बी कंप्लीट। And courteous मतलब the message should be polite, respectful, consideration, receiving needs the perspective, building goodwill and trust. ये ऐसे कंटेक्स्ट में बताया, अगर मैंने कुछ मैसेज दे रहा है, अगर मुझे कुछ लीव लेना है, कुछ कंडीशन है, सो कर्टेसी के साथ मैं परमिशन लेता हूँ, सर मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा 10 दिन का लीव चाहिए, सो दैट टाइप। देन if you are giving the any or you are doing anything, then with courtesy, with respect, we have to give that information. अगर कोई आपका जूनियर गलत भी किया, कुछ बच्चे गलत भी किया, सम courtesy, कुछ कैसे भी हम वो इंफॉर्मेशन मैसेज को बोल नहीं सकते, with some courtesy and respect we have to transfer or inform that messages. Then because the receiver needs the perspective, अगर वो पोजीशन में मैं रहता तो मुझे क्या लगता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्टूडेंट और कोई भी आपका कोलीग कुछ गलत किए तो उनको वो मैसेज इंफॉर्मेशन देने में कर्टसी चाहिए, कैसे बोलना है, इनको किधर बोलना है, वो हमको पता होना चाहिए। देन ओनली इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर किसी का एक छोटे गलती भी हम सबका सामने, अदर कोलीग्स के सामने बोल दिया तो क्या होगा, उनका इंसल्ट होगा। अदरवाइज इफ यू हैव कर्टसी, देन इफ यू उनको बुलाते सेपरेट एंड यू विल टेल, आपने ऐसा करना था, ये टाइप करना था, इधर भेजना था, आपने इधर भेजे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम इधर भेजो। हम सो दिस टाइप ऑफ courtesy and respect should be there in the transferring the message or information. So if these 7 C's, clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous, these make the effective communication. समझ में आ गया आपको? कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो 30 चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है। All of you understand? Yes, sir. Any doubt? Then 7C के बाद 4S भी आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। S मतलब these are synonyms. Yes, short होना चाहिए, मैसेज शुड बी कंसाइज, अप टू पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। एक कॉन्सेप्ट कुछ तो बता रहे तो अननेसेसरी डिटेल्स भी ज्यादा बताए तो वो भी बर्डन होगा। सो दैट्स व्हाई शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं। सिंपल मैसेज शुड बी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल कॉन्सेप्ट, इजियर फॉर रिसीवर्स टू अंडरस्टैंड। स्ट्रेंथ, मैसेज शुड बी डिलीवर विथ कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, स्ट्रेंथ होना चाहिए दैट मैसेज में, इंफॉर्मेशन में। रिफ्लेक्टिंग द सेंडर्स बिलीफ, सेंडर क्या कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहे तो विथ कॉन्फिडेंस बोले तो आपको समझ में आता है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है दैट थिंग्स के बारे में, देन इट विल नॉट create the effective communication. That is the thing, strength. Then sincerity, good message should be genuine, authentic and conveying sender's true intentions. And अगर मैं कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कोई पॉइंट ले रहा हूँ, that should be genuine and authentic. कुछ भी नहीं बोल सकते मुझे, that is genuine होना चाहिए, authentic होना चाहिए, and I am conveying the sender's true intention to the
एंड इमोशन। सिंसियरिटी है तो मेरा इंटेंशन क्या है आपको समझ में आता है। मैं क्यों आपको ये सारे बता रहा हूँ, मेरा इंटेंशन आपको समझ में आ गया था। अगर मेरा ट्रू इंटेंशन है देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड, इसीलिए बता रहे हैं। अगर मेरा इंटेंशन गलत है देन यू विल आल्सो नो दी दैट दिस इज ए गलत है। तो इंटेंशन शुड बी ट्रू इंटेंशन, अथेंटिक होना चाहिए हमारा मैसेज और इंफॉर्मेशन, वॉट एवर थिंग यू आर सेंडिंग दैट शुड बी जेन्युइन, देन ओनली इट बिकम्स द effective communication. So up to this, all of you understood? Hello? Yes, Hello? sir. All of you there listening or? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So I will stop record. If any doubt are there,